Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to learn real numbers. Everything about number system, that is what are rational numbers and irrational numbers in detail. So stay tuned, let's get started. So friends, let's start with natural numbers. What are natural numbers? The numbers starting from 1 are natural numbers. So 1, 2, 3, 4 and so on till infinity are natural numbers, right? Now natural numbers are denoted by capital N. All the natural numbers are denoted by capital N. Now let's move on to the whole numbers. What are whole numbers? The numbers starting from 0 are called as whole numbers. So 0, 1, 2, 3, 4 and so on till infinity are whole numbers, and whole numbers are denoted by capital W. Now all the denotions are with capital alphabet, so capital N and capital W. Is that clear? Okay, moving ahead. Integers. Now what are integers? The numbers which are on the number line, जो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं. So let's see few integers. Let's draw a number line so that we get a better idea what are integers. Say this is a number line. So these are the positive integers, negative integers, right? Let me write -4 as well, and so on. It goes on and on, right? On both the sides. So basically integers on the left hand side are till -infinity, and on the right hand side it will go on and on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity, till positive infinity. So this is the set of integers. लेफ्ट साइड पे -infinity तक जाएगा और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा. Integers are denoted by capital Z. Integers are denoted by capital Z. Now friends, there is a relation between say natural numbers and whole numbers. Now let's see. Can we say that all the natural numbers 1, 2, 3, 4 are present in whole numbers? In other words, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स के अंदर आ गए? सो उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग उसको लिखेंगे नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. मतलब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है. इसको कैसे रीड करते हैं? इज अ सबसेट ऑफ. मतलब नेचुरल नंबर्स किसके अंदर प्रेजेंट है? होल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है. एंड इन द सिमिलर मैनर इफ यू ऑब्जर्व, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से. अगर आप ये इंटीजर्स को ऑब्जर्व करो और ये पूरा पार्ट कंसिडर करो तो क्या ये होल नंबर्स है? राइट. So can we say that all the whole numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on, 0, 1, 2, 3, 4 and so on are present in integers, which is denoted by capital Z. So whole numbers is a subset of integers. समझ में आया? So natural number किसका सबसेट है? होल नंबर का. होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर्स का. नेचुरल नंबर एंड होल नंबर दोनों इंटीजर्स का सबसेट भी हुआ. इसका मतलब चेक करते हैं क्या इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यस, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी प्रेजेंट है, होल नंबर्स भी प्रेजेंट है. सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स बोथ आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स. Now rational numbers are the numbers which are of the form p upon q. जो p upon q के फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. सो ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो p upon q के फॉर्म में है दोज आर रैशनल नंबर्स, बट देयर आर कंडीशंस. p and q must belong to integer. p and q must belong to integer and ये दोनों इंटीजर तो होना चाहिए. साथ में q cannot be equal to 0. Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई होता है देन ओनली वी कैन से द नंबर इज अ rational number. Now all rational numbers are denoted by
capital Q. All rational numbers are denoted by capital Q. Now let's see few examples of rational numbers. Say 10 upon 3, P by Q. P is 10 and Q is 3, so it's a rational number. Q is not equal to 0. Say 5 upon 2 is a rational number. Again P by Q form. Say 10 upon 1, डिनोमिनेटर में 1 है, Q के जगह पे 1 है, so it's a rational number. Is 0 upon 4 a rational number? वैसे तो 0 upon 4 मतलब 0 upon anything is 0. Is 0 a rational number? Yes, 0 is also a rational number because 0 के नीचे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. 0 के डिनोमिनेटर में हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? P एंड Q का वैल्यूज तो है. Q कैन नॉट बी 0, Q कैन नॉट बी 0, P कैन बी 0. तो न्यूमरेटर का वैल्यू 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. सो 0 upon 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. गॉट इट? बट इफ आई आस्क यू, इफ 4 upon 0 इज अ रैशनल नंबर, इज 4 upon 0 अ रैशनल नंबर? नो, बिकॉज यहाँ पे Q 0 हो गया, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता. तो ये गलत जवाब है. गॉट इट? चलो इसको निकाल देते हैं रैशनल नंबर के लिस्ट में से. एंड सो ऑन, देयर आर मेनी numbers possible, actually infinite number possible numbers are possible because there are infinite possibilities for P, infinite possibilities for Q, and overall P by Q का भी infinite combinations possible है. So there are infinite rational numbers. Now friends, let's look at the decimal forms of these rational numbers. अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है, मतलब P by Q के फॉर्म में है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है दैट इज P by Q के फॉर्म में है, तो उसके डेसिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्वियसली अगर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, तो हम लोग यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स के डेसिमल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते प्रैक्टिकली. सो आई एम ओनली टेकिंग 3 एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म्स या फिर डेसिमल एक्सपेंशंस. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, से 10 upon 4. Say we have another example 10 upon 2 and say 10 upon 3. Let's keep it very simple, okay? So these are the 3 examples we have taken. Now 10 upon 4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो what will be the answer? Answer will be 2.5. Answer will be 2.5. And 10 upon 2 को डिवाइड करेंगे तो what will be the answer? 5. Right? But 10 upon 3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो what will be the answer? 3.333 recurring. Right? Which can be written as 3.3 bar because number 3 is repeating itself again and again, so it's a recurring decimal. Now friends, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल्स क्या होते हैं अगर P by Q के फॉर्म में है तो. सो अगर P by Q के फॉर्म में है कोई भी नंबर तो उसके डेसिमल फॉर्म्स क्या होते हैं. लेट्स सी. नाउ 2.5 फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.5 जो है वो डेसिमल एंड हो गया ना 5 पे. डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 5 है. 5 वहां पे रुक गया. इसको ऑब्जर्व करो, 0.3333333 रुका ही नहीं. इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? सो इट्स नॉट एंडिंग बट दिस इज एंडिंग एट 5. तो सच डेसिमल्स विच एंड, जो एंड हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, आर कॉल्ड एज terminating decimals. What they are called as terminating. Now terminate means what? To end something. Terminate means what? To end something. So it's very easy to remember also. तो 2.5 कौन से टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. टर्मिनेटिंग डेसिमल है. Now friends, let's observe the second one. 5 आया. Now friends, 5 को हम लोग है ना क्या लिख सकते हैं पता है? 5 को हम लोग 5.0 लिख सकते हैं. अच्छा, ऐसा क्यों किया? हम लोग तो डेसिमल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो सर यहाँ पे डेसिमल कहाँ पर है? 5 है ना यहाँ पे. 5 को डेसिमल है क्या? 5 को डेसिमल नहीं है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 के आगे हम लोग डेसिमल प्लेस करके 0 लिख सकते हैं बिकॉज 0 डज नॉट हैव एनी वैल्यू, राइट? तो अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 5.0 मतलब डेसिमल वापस एंड हो गया 0 पे. 5.0 इज 5, बट इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते भी है, 5.0 के फॉर्म में लिखते भी है, तो वो एंड हो गया. मतलब वो भी कौन सा फॉर्म हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ. सो द फर्स्ट 2 are of the same type, they are of terminating type.
क्लियर? वेयरएज अभी ऑब्जर्व करो थर्ड, क्या ये टर्मिनेट हुआ, ये क्या एंड हुआ? नहीं हुआ। तो ये एंड नहीं हो रहा है, बट इसका एक डिजिट रिपीट हो रहा है साथ में। एंड तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही डिजिट बार बार रिपीट होने वाला है। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड एज, सच डेसिमल्स आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो एंड नहीं होगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? वो रेकरिंग है, जिसमें एक डिजिट या दो डिजिट्स या तीन डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं एक के बाद एक। इज दैट क्लियर? सो अगर हमको समराइज करना है इसको, सो हम लोग समराइज कैसे कर सकते हैं? अगर P बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर P बाई क्यू के फॉर्म में है मतलब क्या है? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, देन उसके जो डेसिमल फॉर्म्स होंगे वो या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म में होंगे। मतलब वो टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन रेकर होंगे। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ओके, सो क्या हम लोग लिख सकते हैं? P बाई क्यू मतलब रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन चेक इट। आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा। सो रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशंस आर ईदर टर्मिनेटिंग decimals or non-terminating recurring decimals. There are two types. Got it? And friends, you can take any rational number, कोई भी rational number ले लो और चेक करो, या तो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिल सकता। ये मैंने रिलेशन पहले दिया था आपको। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड वी कैन से दैट इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कैसे? लेट्स सी। अगर मैं बोलता हूं कि इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, मींस व्हाट? ऑल द इंटीजर्स आर प्रेजेंट इन रैशनल नंबर्स। ऑल द इंटीजर्स आर प्रेजेंट इन रैशनल नंबर्स। चलो इंटीजर्स को ऑब्जर्व करते हैं उसको समझने के लिए। लेट्स टेक फ्यू इंटीजर्स, ओके, टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नंबर लाइन। इंटीजर्स मतलब नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, राइट? सो 0 1 2 इतने काफी है, -1। अभी हम लोगों को चेक करना है कि क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है। अब आप मुझे बताओ रैशनल नंबर्स क्या है? P बाई क्यू फॉर्म। रैशनल नंबर्स क्या है? P बाई क्यू फॉर्म। तो क्या हम लोग -1 को -1/1 लिख सकते हैं? व्हाट इज -1/1? rational number P by Q form, and -1/1 is nothing but -1. so ये क्या है? इंटीजर है। Can we write 0/1? 0/1 मतलब क्या है? रैशनल नंबर है। 0/1 मतलब क्या है? 0 है। अगेन इट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। सो कोई भी इंटीजर ले लो आप, कोई भी, उसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2/1। सो इट विल बिकम अ रैशनल नंबर. It will not become a rational number, it is already a rational number. So we can say that integer is a subset of rational number. Likewise, you can also check for natural number and whole number. They are also subset of rational number. कोई भी natural number या फिर कोई भी whole number होगा, उसको upon 1 कर दो तो वो P by Q के फॉर्म में हो जाएगा. Is that clear? Now friends, I'll just erase the unwanted part to understand irrational number properly. So हमने रैशनल नंबर को समझ लिया। चलो अभी इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इरैशनल नंबर्स को हम लोग Q प्राइम से डिनोट करते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं? Q प्राइम। Q मतलब रैशनल नंबर। जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना हम लोग, कॉम्प्लीमेंट Q डैश, मतलब रैशनल नंबर को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? इरैशनल नंबर मिलेगा। सो ये Q डैश मतलब जो Q नहीं है वो, Q नॉट भी बोल सकते हैं,
जो Q नहीं है, मतलब जो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? सो मैंने ऑलरेडी बता दिया व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल। इर्रेशनल मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, उसका क्लियर मीनिंग भी वही है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन से फॉर्म में नहीं लिख सकते? वी कैन नॉट represent them, cannot be represented in P/Q फॉर्म, बिकॉज अगर हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे देन सच नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। सो irrational numbers cannot be represented in which form? P/Q form. I hope that is clear. Now friends, ऐसे कौन से numbers है जो irrational हो सकते हैं? You will be shocked if I tell you the examples. Let's see. Pi is an irrational number. Pi is an irrational number. Now sir, पाई का वैल्यू तो 22/7 है, राइट? पाई इज इक्वल टू 22/7, वी लर्नड इट इन स्कूल। बट पाई का वैल्यू एक्चुअल में 22/7 नहीं है। 22/7 उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। सो पाई को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 22/7 इज P/Q फॉर्म, नो डाउट अबाउट इट, P/Q फॉर्म। But 22/7 is not the actual value of pi. It is just an approximate value. So pi is not a rational number. It is an irrational number. So ऐसे numbers जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो irrational होते हैं. For example, all the roots which are not of perfect squares or perfect cubes or एनी परफेक्ट अगर रूट नहीं है तो वो इर्रेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल, रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल, रूट ऑफ 4 इज नॉट इर्रेशनल, रूट ऑफ 4 इज रैशनल। यू नो व्हाई? बिकॉज रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/1, सो इट इज अ रैशनल number. So all the perfect roots are rational, but all the imperfect roots are irrational. जैसे root 5 हो गया, root 2 हो गया, cube root of 4 हो गया, all those are irrational numbers. One more thing friends, last one. We saw what are terminating decimals, we saw what are non-terminating decimals. Now let us see what are non-terminating. I'll write here non-terminating, non-recurring decimals. Now what do you mean by non-terminating? जो end नहीं होता है, and what do you mean by non-recurring? जो रिपीट नहीं होता है। What type of decimals will be non-terminating, non-recurring? I'll give you one example. 2.1010010000 say 3 ... Do you see any pattern which is repeating? कोई भी पैटर्न रिपीट हुआ क्या? वापस नहीं हुआ ना। So is it ending? No. So it's non-terminating, non-recurring decimal. I hope that is clear. And ये सारे नंबर्स जो है पाई, रूट 5, रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लो, आप कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लो, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट इट एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल. सो ऑल द इर्रेशनल नंबर्स आर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग टाइप, whereas all the rational numbers are of terminating, non-terminating, recurring decimal types. I hope that is clear. Combination of rational numbers and irrational numbers together are real numbers. Together are real numbers. Real numbers are denoted by capital R. मतलब real number एक बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा.
और क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। एंड डोंट फॉरगेट इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर ऑल आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर and irrational number together forms real numbers. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आगे और भी ऐसा कंटेंट शेयर करते रहूँगा।